हेलो एवरीवन, दिस इज योर वाचिंग अल्केमिस्ट एकेडमी। सो आज की वीडियो में हम पिस्टल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट एंड एंथर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे पिस्टल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पिस्टल पिस्टल इज द फीमेल reproductive part of the flower। पिस्टल क्या होता है? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। Now next point पिस्टल is कहते हैं। pistil is composed of pistil is composed of one or more than one carpels. Now in this case pistil may have one carpel or it may have more than one carpel. So हम यहाँ पे on the basis of number of carpel इनके अलग अलग नाम रख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग नाम हैं इनके। लाइक अगर हम बात करें on the basis of number of carpel, ठीक है, pistil can be written as, pistil को हम लिख सकते हैं, first one is monocarpellary. Now in this case the gynoecium or pistil has only one carpel, Now the second one is bicarpellary or dicarpellary. Now in this case pistil has two carpels, and third one is tricarpellary. In case pistil has three carpels. Next is tetracarpellary. In case pistil has four carpels. And the last one is polycarpellary. In case pistil has carpel more than four, तो हम यहाँ पे polycarpellary इसको नाम देते हैं। So this is on the basis of the number of carpel present in the gynoecium of the pistil, then pistil may be monocarpellary, bicarpellary, tricarpellary, tetracarpellary और polycarpellary. Next अगर हम बात करें if there is more than one carpel, so there is another type of classification for the carpels, which is like apocarpus and syncarpus। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कार्पल की। तो जो कार्पल है मे बी अगर दो से ज्यादा है या दो है या इससे भी ज्यादा है तो वो फ्री हो सकते हैं, विच इज एपोकार्पस। एपोकार्पस के केस में क्या होता है? देयर आर टू और more than two carpels and these carpels are free to each other, है ना। ये फ्री होती हैं, independent to each other, dependent नहीं होती हैं। these are free from each other or to each other, or we can say, or these are not fused, to each other. So this is the another type of pistil that having apocarpus condition. It means when there is two or more than two carpels are present, they are not fused to each other and they are free to each other. Maybe they are free to each other. The next type is syncarpus ovary. Syncarpus pistil. In this case, अगर इस केस की बात करें, the carpels are fused together. So we can say there are
2 or more than 2 carpels, which are fused to each other. This condition is known as syncarpus. यहाँ पे आपके एग्जाम्पल जो हैं आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे, सिनकार्पस और एपोकार्पस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। नाउ हम बात कर रहे हैं बार बार कार्पल्स की, तो कार्पल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल के बारे में जानते हैं। ठीक है, कार्पल के बारे में जानते हैं। पार्ट्स ऑफ कार्पल। Now carpel is made up of 3 parts mainly or clearly distinguishable parts that are, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। This is made up of 3 parts। 3 parts का बना हुआ होता है, और हम इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं। These parts are easily distinguishable। ये easily distinguishable होते हैं, आराम से इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सा पार्ट है। ठीक है, so the parts are, the first is stigma, the second one is style, and the last one is ovary. So the carpel is made up of 3 distinguishable parts, that is stigma, style, and ovary. So I also want to draw a diagram, a rough diagram of it, so you can easily recognize it like this. So this part is known as carpel. This part is known as carpel. This part of the flower is known as carpel, and it has stigma. You can say this is stigma, this is a style, and this swollen part, basal swollen part, is known as ovary. The basal swollen part is known as. Now talking about carpel is formed from the modification of leaf. Carpel is formed, as we all know that the flower is a modified leaf structure, है ना, leafy structure जो बर्ड से अराइज होती है, जो लीफ बर्ड से अराइज होती है ना। तो जो हम कार्पल है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्पल इज अ मॉडिफाइड लीफ फोल्डेड अलोंग द मिडरिब। जैसे जो कार्पल है, सपोज ये लीफ है हमारी इस तरह से, है ना, और ये हमारे लीफ की मिडरिब है। दिस इज द मिडरिब और दिस इज द मार्जिन। ये मार्जिन है और ये लीफ है। तो होता क्या है, ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली ऐसे फोल्ड हो जाती है, कुछ इस तरह से आप सपोज कर सकते हैं कि जो कार्पल है वो लीफ है वो ऐसे अंदर की साइड में फोल्ड हो गई है ना। सपोज ऐसे ये अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड हो गई है। ठीक है, बट ये एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर नहीं बनता, बट ये अंदर की साइड में फोल्ड हो गई है। ठीक है, अंदर की साइड में ऐसे करके ये, जैसे सपोज ये लीफ है, लीफ के बीच में ये मिडरिब है, तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाती है। जो वेंट्रल साइड है इसकी, अंदर वाली साइड जिसे हम बोल रहे हैं, जो वेंट्रल साइड है, ये वाली साइड होगी, वेंट्रल साइड होगी। जैसे लीफ ये है तो ऐसे अगर फोल्ड होगी तो ये वेंट्रल साइड होगी। यहाँ पे कुशन लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जहाँ पे प्लेसेंटा बनती है। प्लेसेंटा जिसे हम कहते हैं, जहाँ से जो ओव्यूल है वो अटैच्ड होते हैं। अगर आपको याद हो मटर यानी पी प्लांट है ना, पी प्लांट की जो लीफ जो फ्रूट्स होते हैं उसको अगर आप याद हो तो आपने पी प्लांट का फ्रूट देखा होगा, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लंबा सा होता है ना, और यहाँ पे करके ओव्यूल या सीड्स ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ये क्या प्लेसेंटल रीजन है, और वो जो आपकी कार्पल है यानी जिसे आप फ्रूट बोल रहे हो, पूरा फ्रूट किसका मॉडिफाइड पार्ट है, लीफ का पार्ट है। तो वहाँ पे इजीली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो लीफ से किस तरह से ये बनी है। ठीक है, कार्पल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट इज हाईली मॉडिफाइड लीफ फोल्डेड अलोंग टू द मिडरिब। मिडरिब के अलोंग भी क्या होती है, फोल्ड हो जाती है। द मार्जिन ऑफ लीफ फ्यूज्ड फ्रॉम वेंट्रल स्ट्रक्चर, है ना, जो मार्जिन है जैसे जो किनारे थे अभी हम लोग देख रहे थे, ये जो किनारे थे ये वाले
मार्जिन ये फोल्ड जब होते हैं, तो जब फोल्ड होकर फ्यूज होते हैं एक दूसरे से, तो ये बनाते हैं वेंट्रल स्ट्रक्चर या वेंट्रल ग्रोथ बनाते हैं, जो आप कहते हो ना वेंट्रल पोर्शन बनाते हैं, ठीक है। और जो मिडरिब वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन ये बनाता है डॉर्सल साइड, ठीक है, ऑफ द कार्पल, एंड द मिडरिब साइड रिप्रेजेंट द डॉर्सल स्ट्रक्चर, डॉर्सल साइड में, ठीक है ना। अब उसी के बारे में आगे बात कर रहे हैं हम लोग। द कुशन लाइक पेरेन्काइमेटस आउटग्रोथ, जो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे वेंट्रल स्ट्रक्चर पे, है ना, कि जो वेंट्रल स्ट्रक्चर लीफ के मार्जिन के फ्यूज होने से बन रहा था, उस वेंट्रल स्ट्रक्चर पे कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स की ग्रोथ हो रही थी, जिन्हें हम कुशन लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे थे। और आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ दिस कुशन लाइक स्ट्रक्चर वी कैन से इट इज प्लेसेंटा, बिकॉज यहीं से जो ओव्यूल है वो अटैच्ड होते हैं, ओव्यूल यहीं से अटैच होते हैं, तो इसे हम क्या कहने लगते हैं, प्लेसेंटा। आगे इसी के बारे में लिखा है, अ कुशन लाइक पेरेन्काइमेटस आउटग्रोथ डेवलप ऑन द वेंट्रल साइड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा ऑन विच द ओव्यूल्स आर बॉर्न, जहां पे ओव्यूल्स बनते हैं या अटैच्ड होते हैं, इसकी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। सो अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट बात करें पिस्टल की या कार्पल की बात करें, कैसे डेवलप हुआ है, तो इट इज द हाईली मोडिफाइड लीफ फोल्डेड अलोंग विद द मिडरिब। ये मिडरिब के अलोंग क्या होती है, फोल्ड हो जाती है, ठीक है। और जो लीफ के मार्जिन है वो फ्यूज होके क्या बनाते हैं, वेंट्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और मिडरिब क्या बनाती है, आपका जो डोर्सल स्ट्रक्चर होता है उसे बनाती है, डोर्सल स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की, बात कर रहे हैं जो कार्पल है उनमें अलग अलग पार्ट हैं, तो हम कार्पल के पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने कार्पल के डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग उसके पार्ट के बारे में डिस्कस करें, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा को अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें, अगर हम यहाँ पे स्टिग्मा का स्ट्रक्चर देखें, तो आपको क्या फील होगा कि इट इज द फ्लैट स्ट्रक्चर, आप कह सकते हो, किसी किसी में फ्लैट दिखता है, जैसे ये स्टिग्मा है ना, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह नजर आता है। स्टिग्मा जो है ये एक प्लेटफॉर्म की तरह नजर आता है, तो हम इसे कह सकते हैं, इट इज प्लेटफॉर्म फॉर द लैंडिंग, या इट इज एक्ट एज प्लेटफॉर्म, इट इज, यहाँ पे लिख दें, इट इज एक्ट एज प्लेटफॉर्म फॉर लैंडिंग पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन की लैंडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है ना। इट मे बी feathery or sticky, depends upon the type, depends upon the type of फ्लावर। ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फ्लावर है। किसी किसी फ्लावर में जो स्टिग्मा होता है वो फेदरी होता है, फेदरी का मतलब इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रोथ कर रहे होते हैं, जिससे वो इजीली जो पॉलन ग्रेन है उसको ट्रैप कर सकें। ये मोस्टली विंड पॉलिनेशन वाले प्लांट्स में होता है, जहाँ पे विंड पॉलिनेशन पॉसिबल होता है उनमें, है ना। कुछ स्टिकी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टिकी नहीं होते हैं, स्टिकी भी होते हैं। स्टिकी में इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिक्रीशन होता है कुछ फ्लूइड केमिकल्स का, जिसकी वजह से जो स्टिग्मा पे आए हुए पॉलन ग्रेन है वो उसी में ट्रैप हो जाते हैं। तो ये स्टिग्मा का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टाइल, और फिर इसके बाद ओवरी का फंक्शन देखेंगे, ठीक है ना। और अगर स्टिग्मा की बात करें तो इट इज द अपर पार्ट ऑफ द कार्पल, ये सबसे क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द कार्पल। तो हम यहाँ आगे इसके बारे में भी लिख सकते हैं दैट स्टिग्मा इज द अपर पार्ट ऑफ द कार्पल। अगर हम यहाँ पे लिखें तो लिख सकते हैं स्टिग्मा इज द अपर पोर्शन ऑफ द कार्पल, ये भी हम लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, दैट इज स्टाइल। ये बेसिक सा एक आइडिया हम लोगों ने ले लिया, अब हम लोग स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल जैसे अगर हम कार्पल का एक स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पे रफली स्ट्रक्चर, तो जैसे नीचे भी बना हुआ था, ये कार्पल का स्ट्रक्चर है, ये ओवरी है ना, और ये आपका पेडिसल वाला पार्ट है, ये इसको मिटा देते हैं, ठीक। ये आपका ऊपर वाला स्टिग्मा हो गया और ये स्टाइल हो गया। तो आपको स्टाइल देख के इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी लग रही है, ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, इट इज हम कह सकते हैं सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, सिलेंड्रिकल। ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है एंड इलांगेटेड है, ठीक है। ट्यूब लाइक कहीं कहीं पे लिखा होता है, तो इसलिए मैंने सारे वर्ड लिख दिए हैं। ये सिलेंड्रिकल होता है, इलांगेटेड होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है,
है ना, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द स्टिग्मा, और हम क्या सकते हैं, इट होल्ड्स टू द स्टिग्मा, ये क्या करता है, स्टिग्मा को होल्ड करके रखता है ना। और एक चीज यहाँ पे क्या है, इट ऑल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ पॉलिनेशन, ये क्या करता है, इट ऑल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ पॉलिनेशन। आई नो कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, पर अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी सारी सेम होती है अक्सर, है ना, तो वहाँ पे कोई नई चीज़ ऐसी नहीं आ रही है। हम बात कर रहे थे, इट ऑल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ पॉलिनेशन। चांस ऑफ पॉलिनेशन इंक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है, कभी कभी, है ना, आप अगर देखिए तो अगर स्टाइल ना हो ये, तो ओवरी से स्टिग्मा की डिस्टेंस क्या होगी, बिल्कुल नीचे हो जाएगी, मतलब स्टिग्मा बिल्कुल नीचे आ जाएगा ओवरी में, है ना। तो क्या होगा, ये फ्लावर के ऊपर नहीं रह पाएगा ना। अक्सर आपने देखा होगा स्टिग्मा फ्लावर से निकला हुआ होता है बाहर ऐसे करके। अगर एक छोटा सा फ्लावर हम लोग ऐसे बनाएं, ये इसके पेटल्स हैं ना यहाँ पे, तो ये अगर इसका एंथर्स हैं, तो कुछ इस तरह से इसके जो स्टिग्मा होती है वो भी ऐसे निकली हुई होती है ना, ये इसकी पेडिसल है। तो आप देखते हैं कि हमेशा जो पेडिसल हमेशा जो कार्पल होती है उसका स्टिग्मल पार्ट जो होता है, स्टिग्मा ऊपर की तरफ होता है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि स्टाइल है यहाँ पे। अगर ये स्टेराइल नहीं होती तो ये नीचे होता, अगर ये नीचे होता तो पॉलिनेशन के चांसेस कम होते, ऊपर है इसलिए पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं, विंड से भी हो सकता है या कोई इंसेक्ट आके उसमें डायरेक्टली बैठ जाए। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा कि इट ऑल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ पॉलिनेशन, ये क्या करता है, पॉलिनेशन का चांस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें इसमें, तो ये क्या करता है, ये एक तरह से पैसेज प्रोवाइड कराता है, इट प्रोवाइड पैसेज टू द pollen ट्यूब को पैसेज प्रोवाइड कराता है टू रीच आउट द ओवरी, ये क्या करता है, ओवरी तक पहुंचने के लिए ये पॉलन ट्यूब को पैसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो दिस इज द जर्नल फंक्शन एंड जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्टाइल। स्टाइल की अगर बात करें तो ये सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है ना, इलांगेटेड होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इट लाइज बिटवीन द, हम बात कर सकते हैं, एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं, इट लाइज बिटवीन द स्टिग्मा एंड ओवरी, ये स्टिग्मा एंड ओवरी के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारी ओवरी का पार्ट है और ये स्टिग्मा है, तो ये कहाँ लाई करता है, स्टिग्मा एंड ओवरी के बीच में लाई करता है। ये एलोंगेटेड होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द स्टिग्मा, या हम कह सकते हैं इट होल्ड्स द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा को होल्ड करके रखता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन के चांस को इंक्रीज करता है। हमने देखा कि कैसे इंक्रीज करता है, इट प्रोवाइड पैसेज टू द पॉलन ट्यूब टू रीच आउट द ओवरी, रीच आउट ओवरी तक पहुंचने के लिए ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को पैसेज प्रोवाइड कराता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द इट लाइज बिटवीन द स्टिग्मा एंड ओवरी, ये स्टिग्मा और ओवरी के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट जो हमारा है एंड लास्ट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ओवरी, ठीक है। ओवरी के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओवरी। तो ओवरी के बारे में आप भी काफी कुछ जानते होंगे, इसके बारे में हम चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो ओवरी, फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको, अगर कार्पल का बार बार स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं तो ओवरी का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। ओवरी जो है, इट इज द बेसल swollen पार्ट ऑफ द कार्पल। ये क्या है, बेसल swollen पार्ट है किसका, कार्पल का। बेसल का मतलब बेस में जो पाया जाएगा। अगर फिर से अगेन एक बार हम फिर से अगर बनाएं यहाँ पे, तो ये जो swollen पार्ट नीचे बार बार हम बना रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज ओवरी, है ना। इसे हम क्या कह रहे हैं, ओवरी कह रहे हैं। दिस इज द बेसल swollen पार्ट, ये क्या है, ओवरी का swollen पार्ट है, ठीक है ना। अगर हम बात करें ओवरी में, तो ओवरी की अगर हम बात करें, ओवरी में कंटेन वन चैम्बर और मोर देन वन चैम्बर, में भी हो सकता है कि एक चैम्बर हो ओवरी के अंदर, या हो सकता है
मोर देन वन चैम्बर हो, जैसे कि अगर हम इसका टीएस कट करें, अगर यहाँ पे हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें इसका, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हो सकता है कि ये ओवरी, जो इसके अंदर ओवरी है उसमें एक सिंगल चैम्बर हो, ठीक है, ऐसे करके एक सिंगल चैम्बर हो, जैसे ये पूरा पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है, या हो सकता है 2 चैम्बर हो, डिवीजन इसमें हो, या हो सकता है 2 से ज्यादा हो, है ना, आप सिट्रस वगैरह में देख सकते हैं, मे बी ये अंदर के चैम्बर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर हम चैम्बर के बेसिस पे इसको नाम दें तो अलग अलग चैम्बर के बेसिस पे ओवरी के नाम हो जाते हैं। जैसे हम बात करें यूनिलॉक्यूलर, यूनिलॉक्यूलर, लॉक्यूलर वर्ड इज यूज फॉर द चैम्बर, हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं लॉक्यूलर फॉर द चैम्बर, या लॉक्यूली वर्ड यूज करते हैं सिंगल के लिए, लॉक्यूली, है ना, लॉक्यूलर वर्ड इज यूज फॉर द चैम्बर व्हेन वन चैम्बर इज प्रेजेंट, व्हेन वन चैम्बर इज प्रेजेंट, ठीक है। यूनिलॉक्यूलर अगेन फिर हम वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे हम लोगों ने कार्पल के बारे में डिस्कस किया था। बाइलॉक्यूलर, ठीक है, क्या होगा इसमें 2 लॉक्यूल होंगे, ठीक है, मतलब 2 चैम्बर होंगे जैसे हम लोगों ने देखा। फिर अगेन हमारे पास आ जाएगा ट्राइलॉक्यूलर, इसमें क्या होगा 3 लॉक्यूल्स होंगे, 3 चैम्बर्स होंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। ये ओवरी की बात हो गई, ठीक है। अब इस चैम्बर का मतलब क्या है, चैम्बर में क्या, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हर एक चैम्बर में अलग अलग नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे, मतलब ओव्यूल्स लगे होंगे इन चैम्बर्स में, है ना। अगर सिंगल लॉक्यूल है तो इसके अंदर ओव्यूल्स लगे होंगे, मे बी एक लगा हो, मे बी मल्टीपल ओव्यूल लगे होंगे, है ना, ठीक है। या हो सकता है जैसे आपने सिट्रस में देखा हो तो आपने देखा होगा सीड्स ऐसे लगे होते हैं, है ना, उसमें लॉक्यूल्स आपको क्लियरली नजर आते हैं जब आप सीड को कट करते हो, तो वहां पे सीड्स ऐसे लगे होते हैं, सीड्स लगे होते हैं हर एक लॉक्यूल में, ठीक है। उस लॉक्यूल को हम कहते हैं, या उस चैम्बर को हम कहते हैं लॉक्यूल्स, ठीक है। अगर सिंगल होगा तो यूनिलॉक्यूलर, अगर डबल होंगे तो बाइलॉक्यूलर, ट्राई होगा तो मतलब 3 होंगे तो ट्राइलॉक्यूलर, एंड सो ऑन, मतलब 4 होगा तो टेट्रालॉक्यूलर, ऐसे करके हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब अगर इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग डिस्कस करें लॉक्यूल के बारे में, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, फिर भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पे, इसको मिटा ले रहे हैं कि जो लॉक्यूल है उसके अंदर क्या होंगे, यहाँ पे लॉक्यूल्स जो है उसके अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे, ठीक है। इन ओव्यूल्स के अंदर क्या होंगे, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे आप क्या कहते हो, एम्ब्रियोसैक, यानी अगर हम बात करें ओव्यूल्स के अंदर तो मेगास्पोर होगा, है ना, मेगा स्पोर, वो मेगास्पोर जेनेसिस करके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियोसैक। और एम्ब्रियोसैक में क्या क्या चीजें होंगी, एम्ब्रियोसैक के अलग स्ट्रक्चर होगा जिसमें आप एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स, ठीक है, या आप बात करें पोलर न्यूक्लियाई एक्सेट्रा, यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।